Audible to all of you? Yes, sir. Fine. Yes, sir. So in last class we were doing nervous system. Uh, in this chapter we have completed till reflex arc. So reflex arc. What else is left in this chapter? Would you please remind me? Like I think we have completed this chapter. Neural function, we did it. Human neural system, we did it. What is this? Nothing in this page. Then we did human brain, central nervous system, midbrain, hide brain, and all that. Then we did midbrain and hide brain. Then we did transmission of nerve impulse, right? We did transmission of impulse, reflex action. We did reflex action. Let me check it. What is left with that? I think we have completed this chapter. In case if we have any, please check you as well. What is left with this chapter? Neural impulse. Yes, there are some important thing which has been still. What else is left in this chapter? So the year maybe we'll do Yes, that. ear and human eye. There are two important component of this chapter which has been left. So first we'll study the ear, eye, and human eye, and then we will study the human ear and functioning of ear. And after the completion of human ear and functioning of the ear, then we will proceed with the last chapter, that is the chemical control and chemical coordination. Chemical control and coordination. So that will be the last chapter. So human eye. Neural control and coordination. Reflexes, reflexes, transmission of chemical impulse and human eye. Yes. So put the heading human eye. We are going to start with the human eye. Human eye. First, let me explain you the structure of morphological structure and anatomical structure of human eye. Then I'll dictate neural system. Human eye. Look, this is the anatomy of human eye. Yes. Look. So human eye is basically made up of three layers, right? Outer, middle, and inner. Right. So then, first, let me tell you this outer structure, the outermost cover, is called sclera, right? Light blue color structure. This is called sclera. So first one is sclera. Then second one. So this is the first one is sclera, and the second is choroid, and the third layer is retina, right? So these are the three layers. The front part is made up of this front part is made up of cornea. Cornea is a transparent structure through which light penetrates. Below the cornea, there is a structure that is called iris. Iris is actually the part which provides color to a person's eye. Inside the iris, there is a lens which is biconcave in nature, and this lens remains suspended with some muscles. These are called ciliary body, right? When ciliary body they stretch, they contract, the muscles become thin, and when ciliary body relax, the lens become thick. Inside this particular part, there is a liquid-like substance that is called vitreous body or vitreous humor.
Vitreous humor never changes. And after this structure, like this lens and after this iris, there is a hole like structure between the iris that is called pupil. Pupil is that part from where the light penetrate. This interior chamber, this interior chamber, this remains filled with a fluid that is called aqueous humor. Aqueous humor. So it remains filled with the aqueous humor. Aqueous humor is keep on changing. There are certain glands which keep on secreting aqueous humor, and they keep on removing. So the old or the previous aqueous humor, there are certain glands over here. These glands are called canal of Iscum. Canal of Iscum are found at both of these ends. So this is called canal of Iscum. Canal of Iscum. SCHLEMM. Canal of Iscum are those tube-like structure which keep on removing these fluid, and this fluid is being secreted by these muscles which are found around here, right? And look, in retina part, there is a depression. That depression is called macula, right? So inside the macula, there is a pit. Inside this macula pit, there is a सर यहीं structure. पर इससे ग्लूकोमा कॉज होता है ना, ये वाला फ्लूइड जगह ये सब क्लॉग हो जाता है। हाँ, क्लॉग हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। ओके, इससे ग्लूकोमा हो जाता है उसके बाद। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैकुला वाला पार्ट है, मैकुला वाले पार्ट में दिस इज डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर, देयर इज अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोविया सेंट्रियलिस, राइट? फोविया सेंट्रियलिस, फोविया सेंट्रियलिस। और ये जो फोविया सेंट्रियलिस है, इस फोविया सेंट्रियलिस को, इसी को हम लोग बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट हमारी पूरी की पूरी, तो ये पूरा पार्ट ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है इस वाले पार्ट पे, रेटिना में। पूरे रेटिना में, पूरी रेटिना एक कर्टेन लाइक स्ट्रक्चर, इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मैकुला या फोविया सेंट्रलिस वो पार्ट है जहां पर सबसे क्लियर इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्यों? अगर कोई पूछे कि क्यों, तो यहाँ पर सभी कोन सेल्स पाई जाती हैं जो कि इमेज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद ये वाला पॉइंट सब चारों तरफ में नर्व्स, और ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में नर्व है। नर्व यहाँ से एक पॉइंट पे आकर के मिलती है, इसको हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। ऑप्टिक डिस्क जहां पर पाई जाती है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, जहां पे सभी नर्व आकर के मिलती हैं या ओरिजिनेट होती हैं, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। रेटिना में अकेला एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। ऑल ऑप्टिक नर्व्स अराइज फ्रॉम दिस ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक डिस्क and they goes to the brain. And what is the function of the brain? Brain is responsible, so formation of image takes place in retina. And what kind of the image is formed in retina? You must have learned the image formation in your physics class. So retina में जो image बनती है, पहली बात तो वो inverted बनती है, तो वो erect image नहीं होती, that is inverted. So inverted image, and this is smaller than object, smaller than ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हमेशा हमें पता है इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज ही होती है, रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब इस इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करना और इसको एक्चुअल साइज में दिखाना, ये पूरा काम ब्रेन का होता है। तो ये काम ब्रेन करने का काम करता है, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ आवर आई। क्लियर है क्या? समझ आ गया सबको? क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि हम अपनी आई को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। डेफिनेटली यस, हमने आई को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ना? अब सबसे पहला तो हम इसको कहते हैं लुक आउटर, तो आई के पार्ट है ना। तो सबसे पहले होता है आउटर फाइब्रस कोट, आउटर फाइब्रस कोट। तो आई में जो आउटर कोर है वो फाइब्रस कोट है। आउटर फाइब्रस कोट को स्क्लेरा और कॉर्निया में डिवाइड करते हैं, स्क्लेरा एंड कॉर्निया में डिवाइड करते हैं। सेकेंड नंबर पर जो है दैट इज मिडल वेस्कुलर कोट,
खास बात क्या होती है, आई का जो आउटर कोट होता है उसमें वेस्कुलर बंडल मींस ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। यही कारण है कि आई का जो ऑपरेशन होता है वो सबसे इजी होता है, क्योंकि इसमें आउटर पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता ही नहीं। तो मिडिल वेस्कुलर, मिडिल वेस्कुलर कोट, तो बीच वाला जो कोट है उसको मिडिल वेस्कुलर, कौन कौन, कोराइड, तो कोराइड वाला पार्ट मिल करके कोराइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस, सिलियरी बॉडी और आइरिस मिलकर के आइस के मिडिल पार्ट का फॉर्मेशन करती है। थर्ड वाला जो हमारा पार्ट है वो इनर पार्ट है, इनर नर्वस कोट। जो इनर वाला नर्वस कोट है वो किसे किससे मिलकर, वो सिर्फ रेटिना से मिलकर के बना हुआ है ना। तो हम आइस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पार्ट नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको नोट करना हम लोग शुरू करते हैं एक एक पार्ट को, है ना। नोट कर लिया, Yes, sir. ठीक है, चलो नोट करो। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फाइब्रस कोट, उसमें पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हैं ना। स्क्लेरा इज, स्क्लेरा कवर्स, स्क्लेरा कवर्स द मोस्ट ऑफ eyeball, sclera cover most of eyeball. It is white in color. It is white in color and contain. It is white in color and contain many collagen fiber. It is white in color and contain many collagen fiber. Full stop. Underline the collagen fiber. It protect and maintain. It protect and maintain the shape of eyeball. It protect and maintain the shape of eyeball. Next, cornea is transparent portion that form, cornea is transparent portion that form anterior 1/6 part. Cornea is transparent portion that form anterior 1/6 part of eyeball. Full stop. ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन करना। द कॉर्निया इज अवेस्कुलर। कॉर्निया इज मतलब अगर हमारी कॉर्निया में हमें सुई चुभाई जाएगी तो भी हमको फील नहीं होगा, कि उसमें न्यूरॉन्स में नर्वस सिस्टम ही नहीं पाया जाता, राइट, और इसमें ना ही ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, इसीलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना सबसे इजी ऑपरेशन होता है। कॉर्निया इज एवेस्कुलर, दैट इज एवेस्कुलर, दैट इज it do not have blood supply.
full stop. This part of eye absorb oxygen from air. This part of eye absorb oxygen from air. अगला पॉइंट इसके नीचे नोट करके लिखो, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एवेस्कुलर वाला जो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अगला पॉइंट जो लिखवा रहा हूं वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन। कॉर्निया वाज द फर्स्ट ऑर्गन, cornea was the first organ to be successfully transplanted. Cornea was the first organ to be successfully transplanted because it lacks blood supply, because it lacks blood supply. Next point. At the junction of, ये देखो इन दोनों के, तो ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो आपका स्क्लेरा वाला पार्ट है, इसी स्क्लेरा का एक्सटेंशन है जिससे कि कॉर्निया का फॉर्मेशन होता है। और जहां पर आप देखें स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों मिल रहे हैं, इनके जंक्शन पर ही कनाल ऑफ स्केम पाई जाती है। नोट करेंगे, एट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया, एट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया, canal of schem are present. Canal of schem are present. From the anterior chamber, the aqueous humus, from the anterior chamber, the aqueous humor is drained off by canal of schem, drained off by canal of schem into blood. अगली हेडिंग डालेंगे मिडिल वैस्कुलर कोट, मिडिल वैस्कुलर कोट। Choroid contain numerous blood vessels that supply nutrient and oxygen to other tissues, especially of retina. Full stop. It also contain pigmented cells that absorb light. It also contain pigmented cells that absorb light and prevent light being reflected within the eye. Prevent light being reflected within the eye. Clear? Next, ciliary body composed of ciliary muscles, full
full stop. They are, underline करेंगे, smooth muscles. They are smooth muscles. Full stop. The capsule of lens. The capsule of lens remains attached with. Capsule of lens remains attached with these muscles. Next, iris is a muscular diaphragm containing pigment. Iris is a diaphragm, muscular diaphragm containing pigment that gives color to eye. It separates aqueous humor. It separates aqueous humor from vitreous humor. Full stop. It has an opening in center. It has an opening in center called pupil. The pupil, full stop, the pupil control amount of light. The pupil control amount of light entering into lens. देखो क्या होता है, ये जो आइरिस है, ये देखो आप यहाँ पर ये जो होल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने कहा प्यूपिल, ये जो है ना, तो इस आपने इस होल लाइक स्ट्रक्चर को प्यूपिल कहा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है आइरिस है ना, ये जो पूरा आपको ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, ये आइरिस है। अब आइरिस, या पहली बात तो ये इसको कलर देता है, हमारी आंखें अगर ब्लू है तो आइरिस हमारी ब्लू है, आइस ब्राउन है, ब्लैक है या ग्रीन है तो इसका मतलब आइरिस का कलर ऐसा है, इसलिए आइरिस हमारी इस कलर की दिख रही है। अब आप देखो यहाँ पर ये जो आइरिस है, आइरिस अगर ये ऐसे रिलैक्स होगी, है ना, तो ये ऐसे अगर रिलैक्स होगी, है ना, तो क्या होगा, हमारा पपिल का साइज बढ़ जाएगा, जिससे कि लाइट ज्यादा एंटर जा पाएगी, है ना। और अगर ये आइरिस ये छोटी हो जाएगी तो जब हम ज्यादा जाते हैं, डार्क में जाते हैं, तो क्या करते हैं, अचानक से हम ऐसे आइस को एक्सपेंड करने का काम करते हैं। एक्चुअली हम आइरिस फैला रहे होते हैं जिससे कि हमारा प्यूपिल का साइज बढ़ जाए और लाइट ज्यादा जा पाए अंदर और हमें साफ दिखाई दे। और अगर बहुत तेज रोशनी होती है तो हम अपने आइस को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे सिकुड़ते हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा आइरिस सिकुड़ रहा होता है, जिससे कि लाइट का अमाउंट कम अंदर जा पाए और हमें क्लियरली दिखाई दे पाए। ठीक है, तो इस तरह से आइरिस लाइट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, अब अगली हेडिंग डालेंगे इनर न्यूरल कंट्रोल। इनर न्यूरल कंट्रोल या न्यूरल कोड, सॉरी, इनर न्यूरल कोड। अब इसमें रेटिना ही सिर्फ इसका पार्ट है, तो नोट करेंगे। रेटिना इज द न्यूरल एंड सेंसरी लेयर ऑफ, रेटिना इज न्यूरल एंड सेंसरी लेयर ऑफ eyeball. Full stop. Its external surface is in contact with choroid. Its external surface is in contact with choroid. Next point. Retina is lying exactly opposite. Retina is lying exactly opposite to center of. Retina is lying exactly opposite to center of the cornea.
is named as macula lutea. Is named as macula lutea. Is named as macula lutea. Full stop. It is also called yellow spot. Full stop. It have a middle shallow depression. It have a middle shallow depression called fovea centralis. तो मैकुला के अंदर ही क्या है? फोविया सेंट्रलिस है. फोविया सेंट्रलिस. फुल स्टॉप. The fovea centralis, important है. The fovea centralis have cone cells only. The fovea centralis have cone cells only. It is devoid of rod and blood vessels. It is devoid of rod and blood vessels. Full stop. Here the nerve fiber from light sensitive, here the nerve fiber from light sensitive cells leads to eyeball from optic nerve. ठीक है. और तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि रॉड और कोन सेल्स की लेयर पाई जाती है ना. ये लेयर पाई जाती है कहाँ पे? हमारे कॉर्निया में. तो ये बात हम लोग और पर समझ लेते हैं. अब एक सब्सटेंस होता है रोडोप्सिन, है ना. तो रोडोप्सिन सब्सटेंस किस चीज से मिलकर के बना होता है? ये एक विजुअल पिगमेंट है. ये ऑप्सिन और रेटिनिन नाम के दो सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है ना. तो पहले मैं इस बात को आपको समझा दूं, फिर आप समझ पाएंगे. मतलब हमारी आईज की फंक्शनैलिटी कैसे होती है, कैसे हम देख पाते हैं. तो जब लाइट पड़ती है, कोई भी इमेज बनती है, तो वो इमेज का आखिर फॉर्मेशन कैसे होता है. तो पहले एक्चुअली क्या होता है, कुछ केमिकल सिग्नल्स बनते हैं और वो केमिकल सिग्नल बाद में नर्व सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो देखो, तो हमारी जो सेल्स होती हैं, दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं हमारी आईज में. तो अगर बोले तो कुल मिलाकर के रेटिना जो होती है, तो रेटिना में दो तरह की सेल्स पाई जाती है. एक तो पाई जाती हैं रॉड सेल्स और दूसरी पाई जाती हैं कोन सेल्स. अब देखो, इनमें से क्या होता है, कोन सेल्स ही होती हैं जो हमें किसी चीज को दिखाती हैं. अब बेसिकली जो रॉड सेल्स होती हैं, ये फंक्शनल होती हैं एट लो लाइट इंटेंसिटी, है ना. तो लो लाइट इंटेंसिटी. और कोन सेल्स काम करती हैं हाई लाइट इंटेंसिटी में. हाई लाइट इंटेंसिटी. और दूसरी बात, जो हम कलर देख पाते हैं, वो कलर देख पाते हैं हम लोग किसकी वजह से? कलर तो हम कोन सेल की हेल्प से ही देख पाते हैं. ठीक है. तो कलर का हमें जो सेंस होता है वो कोन सेल की हेल्प से होता है. अब ये जो रॉड सेल्स होती हैं, रॉड सेंसिटिव में एक पिगमेंट पाया जाता है जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं रोडोप्सिन. रोडोप्सिन पिगमेंट. रोडोप्सिन जो पिगमेंट होता है, इट इज अ फोटो सेंसिटिव, मतलब ये लाइट के लिए सेंसिटिव. फोटो सेंसिटिव, है ना. अब क्या होता है, रोडोप्सिन इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग, ऑप्सिन, है ना, और रेटिनिन. तो ये जो रोडोप्सिन होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन और दूसरा होता है रेटिनिन, है ना. तो ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है. दोनों ही प्रोटीन है, रेटिनिन और ऑप्सिन, है ना. तो यहाँ पर ऑप्सिन जो है, ये एक तरह का प्रोटीन है
और ये जो रेटिनिन है ये विटामिन ए है। तो ऑप्शन क्या है? दिस इज प्रोटीन। और ये जो रेटिनिन होता है ये एक्चुअली विटामिन ए ही है, मतलब विटामिन ए से ही बनता है, ये विटामिन ए का ही फॉर्म। ठीक है। रॉड सेल्स क्या होती है? डार्कनेस में देखने में हमें हेल्प करती हैं, है ना, और नॉक्टर्नल एनिमल्स में ज्यादा डेवलप होती हैं। अब कोन सेल्स में जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट पाया जाता है वो क्या होता है ना? तो कोन सेल्स में इसमें फोटो सेंसिटिव पिगमेंट पाए जाते हैं। इसमें 3 तरह के फोटो सेंसिटिव पिगमेंट पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है प्रोपाइरोप्सिन, प्रोपाइरोप्सिन एक ये पाया जाता है, आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन पाया जाता है, और साइनोप्सिन, साइनोप्सिन पाया जाता है। साइनोप्सिन, आयोडोप्सिन और प्रोपाइरोप्सिन पाया जाता है। अब ये क्या करता है? ये रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या होता है? ये रेड लाइट के लिए होता है प्रोपाइरोप्सिन, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा ग्रीन लाइट के लिए, है ना, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा ब्लू लाइट के। तो यहाँ पर क्या है? आरबीजी, हमें पता है कि आरबीजी 3 ही जो है यही प्राइमरी कलर है, और इन्हीं से बाकी दुनिया में जितने कलर बने हैं वो सब दिखाई। तो हमें कलर जो दिखाई देते हैं वो इन्हीं कोन सेल्स की वजह से दिखाई देते हैं। जब इन पे लाइट पड़ती है तो ये पिगमेंट्स पर्टिकुलर कलर को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिससे पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ। नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, नोट करेंगे। रेटिना कंसिस्ट ऑफ layer of rod and cone cells, full stop. The total number of the total number of the total number of सर आप स्टार्टिंग से बोल सकते हैं? हाँ, the retina is consist of the retina consists of layers of rod and cone cells, full stop. The total number of rod in the total number of rod cells in human retina, the total number of rod cells in human retina are 110 to 125 million. 110 to 125 million. And the cone cells are 6.3 to 6.8 million. And the cone cells are 6.3 to 6.08 million. The rod cell contain a photosensitive pigment. The rod cell contain photosensitive pigment rhodopsin. अगला लाइन अंडरलाइन करना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। The rhodopsin is purple color pigment. Rhodopsin is a purple color pigment made up of opsin protein and retinine.
opsin protein and retinine. Next point. The rod mainly enable person to see in darkness. The rod mainly enable person to see in darkness. Let's stop. Next point. The photosensitive pigment. The photosensitive pigment in the cones are three types. Photosensitive pigment in the cones are of three types. Full stop. Porphyrosin, comma, idopsin, and synopsin. Porphyrodin, porphyropsin, idopsin, and synopsin, which responds to red, green, and blue color respectively. Which responds to red, green, and blue color respectively. ये तो हो गया हमारा प्रोटीन कंटेंट, है ना। और क्या रह रहा है? अच्छा, लेंस लिख लो। लेंस हमारा कैसा होता है इसका, है ना। जो लिख लो, लेंस इज द ह्यूमन आई लेंस इज transparent. Human eye lens is transparent, biconvex, elastic structure. Human eye lens is transparent, biconvex, elastic structure that bend light wavelength, when they pass through it, that bend light wavelength when they pass through it, right? Or it is composed of, underline करो, बना किसी होता है, it is composed of epithelial cell. It is composed of epithelial cell and have clear cytoplasm. और एक चीज और लिख लो, the lens can also change shape from ear to ear. The lens can also change shape ear to ear, thereby accounting for changes in vision. ठीक है भाई। अब एक चीज और समझ लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ विजन, है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ विजन में कुछ नहीं, ये ऑप्सिन और रेटिनॉल जो पिगमेंट होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। इनके ब्रेक होने की वजह से केमिकल रिलीज होते हैं। उस केमिकल की वजह से नर्व सिग्नल हमारे न्यूरॉन्स रिसीव कर लेते हैं, और न्यूरॉन्स उस सिग्नल को ब्रेन तक लेकर के जाते हैं। ब्रेन तक ले जाने के बाद ब्रेन उसको सेंस करता है सिग्नल्स को, और एक विजन में क्रिएट कर देता है। इस तरह से हमको दिखाई देता है ना। लेंस का फोकस वैसे चेंज होता है, सिलरी मसल्स फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, वैसे लेंस का फोकस चेंज होता है। ठीक है, नोट करो।
नोट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन। द फोटो सेंसिटिव कंपाउंड ऑफ ह्यूमन आई, mechanism of vision, the photosensitive compound of, एक मिनट मेरा, give me 1 second. Give me just a second, मैं अभी आपको थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक इमेज और आपको दिखाना चाह रहा था, इससे आपको मैकेनिज्म ऑफ आई, देखो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये ऊपर से लाइट पड़ी है ना, ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाला कॉर्निया वाला पार्ट हो गया, उसके ऊपर एक टीयर फिल्म करके कवर है, ये पपिल के अंदर से लाइट गई, लाइट गई पपिल्स के अंदर से, प्यूपिल के अंदर से पेनिट्रेट होती है, लेंस में गई, लेंस ने फिर लाइट को फैला दिया, फैला करके कॉर्निया में यहाँ पे पीछे की तरफ कॉर्निया आपका कॉर्निया में भेज दिया। अब सीधे जो लाइट जहाँ पे विजन सबसे अच्छा बनता है, हमें पता है बिल्कुल पपिल के एकदम सीध पे क्या, मैकुला, मैकुला के अंदर क्या है, फोविया सेंट्रियलिस है ना। अब देखो लाइट चारों तरफ पड़ी, ये रेटिना का थोड़ा सा पार्ट है, अब देखिए रेटिना वाला पार्ट है। अब रेटिना वाले पार्ट में सबसे बाहर की तरफ जहां पर लाइट पड़ी है ना, इसमें पीछे की तरफ गैंग्लियन सेल है, मतलब न्यूरॉन से बनी हुई कुछ सेल्स हैं। इन्होंने क्या किया, लाइट को रिसीव किया। उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे एक लेयर है जिसको कि हम बाइपोलर सेल्स बोलते हैं, बाइपोलर सेल्स की लेयर है। उसके पीछे जाकर के ये रॉड और कोन सेल्स की लेयर, ये देखो ये येलो कलर की रॉड है और पर्पल कलर की कोन सेल्स यहाँ पे बनाई गई है ना। ये क्या होता है कि इनमें जाकर के जब ये इनके ऊपर जब यहाँ तक लाइट पहुंचती है, तब जाकर के क्या होता है कि इनमें ये रिएक्शन शुरू होता है, इनके पिगमेंट ब्रेक होते हैं। उसके पीछे पूरा न्यूरॉन्स है और न्यूरॉन्स इसको रिसीव कर लेते हैं और फिर ऑप्टिक नर्व्स इसको लेकर के जाती है इस मैसेज को ब्रेन तक। ठीक है, तो नोट करो
the photosensitive compound in human eye composed of the photosensitive pigment, photosensitive compound in human eye composed of opsin and retinal. Full stop. Light induces the dissociation of retinal from opsin. Which changes the structure of opsin. Full stop. Thus, a potential difference is generated in photoreceptor cells. Thus, a potential difference is generated in photoreceptor cells. Full stop. This causes potential in the ganglion cell. This causes potential in ganglion cell through the bipolar cells. Full stop. These action potential or impulses. Transmitted by nerves to the occipital lobe. Transmitted by nerves to the occipital lobe of cerebrum. To the occipital lobe of cerebrum. Full stop. In brain, neural impulses are analyzed. In brain, neural impulses are analyzed and formation of image takes place. बताओ भाई, इमेज फॉर्मेशन समझ में आया कि नहीं आया? टेल मी प्लीज. अभी इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया कैसे होता है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. एक और चीज कि हमारा लेंस फोकस कैसे करता है, मैं एक डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ. बस दिस इज मोर देन सफिशिएंट एक्चुअली. तो ये रॉड और कोन्स का जो मैंने आपको पिगमेंट जो मैंने बताया वो याद रखना, और कैसे किसका डिसोसिएशन होता है वो याद रखना. बस यही सब क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे. और फोकस कैसे करता है लेंस में वो मैं आपको एक डायग्राम और दिखा देता हूँ, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. बहुत बड़ा डायग्राम है. ये देखिए, तो इस तरह से है ना, आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पे हमारी आंखों में फोकस होता है. जैसे कोई ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ होता है तो ये जो मसल्स होती हैं, इस पे ये लेंस जो मसल्स होती हैं वो मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. कॉन्ट्रैक्टेड सिलरी मसल्स, तो देखो सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई. अब जैसे सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो सिलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेंस हो गया स्फेरिकल, जिससे कि क्या होता है कि हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना. और ये रेटिना में देखो इमेज बन गई. इसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है ना, फार रखा होता है, तो ये मसल जो होती है ये रिलैक्स हो जाती हैं.
जिससे कि लेंस जो होता है वो फ्लैटेंड हो जाता है, फिर इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई, फोकल लेंथ बढ़ गई, फिर से इमेज का फॉर्मेशन रेटिना में होगा। इस तरह से हमारी जो सिलरी मसल्स होती हैं फोकल लेंथ को चेंज करती रहती है, तो हमारे लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो डिफरेंट। ठीक है, क्लियर? ह्यूमन ईयर पढ़ा जाए। ह्यूमन ईयर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ। आईज वाला तो थोड़ा सिंपल था, कुछ खास नहीं है, बस ऐसे जैसे आई वाला था वैसे ही है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट है ह्यूमन ईयर। ह्यूमन, तो मैं आपको ह्यूमन ईयर का पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो ये हमारा हो गया ईयर, ईयर का डायग्राम है, तो बड़ा कर दिया जाए तो आपको समझ में आए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो ईयर होता है हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर मिडिल और इनर पार्ट, है ना। आउटर मिडिल और इनर पार्ट। यहाँ पे जो आउटर वाला ईयर होता है, तो आप देखेंगे ये एक्सटर्नल वाले पार्ट को इसको हम लोग पिन्ना कहते हैं, ये पिन्ना कहलाता है जो बाहर वाला पार्ट होता है ना। ये नीचे वाला पेलेबल पार्ट होता है, और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा पार्ट है इसको हम ईयर कैनाल बोलते हैं, है ना, ईयर कैनाल। इसको मैटस भी कहा जाता है, ठीक है। और इस ईयर कैनाल के अंत में, इस मैटस के एंड में यहाँ पर एक कर्टेन लगा है जिसको हम टिम्पैनम बोलते हैं। टिम्पैनम एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन जैसा, इसको हम ईयर ड्रम कहा जाता है इसी को। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये इलास्टिक कार्टिलेजेस है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये व्हाइट व्हाइट तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दे आर एक्चुअली इलास्टिक कार्टिलेजेस। तो ये इलास्टिक कार्टिलेज से बने होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ईयर ड्रम के अंदर, अब ये जो अंदर वाला पार्ट है, मिडिल वाला पार्ट, मिडिल वाले पार्ट में अब यहाँ से अगला चेम्बर अलग हो गया, है ना। इस चेम्बर के अंदर यहाँ देखेंगे 3 हड्डियां हैं हमारी, है ना। तो सबसे पहले आइरस, इंकस और मैलस। तो इसको हम लोग मिडिल ईयर, इस वाले पार्ट ग्रीन ग्रीन दिखाया, इसको मिडिल पार्ट कहते हैं। मिडिल में अंदर सबसे पहले मैलस है, मैलस के बाद इंकस है, और फिर सबसे अंदर जो सबसे छोटी हड्डी है उसको हम स्टेपीज कहते हैं। तो इस तरह से ये मैलस, इंकस और स्टेपीज, 3 हमारे कान में इस तरह से हड्डियां पाई जाती हैं, है ना। और ये अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये जो पूरा का पूरा अंदर वाला पार्ट होता है, इसको हम इनर ईयर या कोक्लिया कहते हैं। इनर ईयर या जो कोक्लिया होता है ना, इसमें यहाँ पर इनर ईयर या कोक्लिया में ये अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर है, ये जो आगे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बैलेंस, है ना। इसमें 3 कैनाल पाई जाती है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और ये पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है, ये इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कोक्लिया कहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो ऑर्गन होता है, तो ये ऑर्गन ऑफ बैलेंस जो होता है हमारी बॉडी के बैलेंस को एक्चुअली मेंटेन रखता है। और ये पूरा का पूरा ये जो होता है ये फ्लूट करता रहता है, फ्लूइड के अंदर, ये लिक्विड के अंदर, है ना। और इसके अंदर थोड़े थोड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि वाइब्रेशन को सेंस करते हैं, और ये फिर इस वाइब्रेशन को हमारे नर्व्स की हेल्प से अंदर की तरफ पहुंचा देते हैं। ठीक है, समझ आया थोड़ा बड़ा? यस सर। ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अंदर जो बोन्स होती हैं, ये बोन्स कैसे होती है ना। ये जो बोन्स, जो मिडिल वाला ईयर है, इस मिडिल वाले ईयर पार्ट को और थोड़ा समझते हैं, बोन्स को समझना जरूरी है। जो मिडिल ईयर में जो बोन्स पाई जाती हैं, इनको हम ऑसाइकल्स बोलते हैं, है ना। ईयर ऑसाइकल्स भी इन्हीं को कहा जाता है। इन्हीं में से जो स्टेपीज है, ये सबसे छोटी बोन है हमारी बॉडी, ठीक है। तो पहले मैं आपको मिडिल वाला पार्ट समझा देता हूँ। मिडिल ईयर मतलब ईयर की बोन। देखो भाई साहब, तो ये जो मिडिल ईयर होती है इसमें 3 बोन्स पाई जाती है ना, 3 बोन्स। आउट ऑफ दीज 3 बोन्स, यहाँ पर देखो ये हो गया ईयर ड्रम, है ना। ईयर ड्रम से कनेक्टेड जो पहली वाली बोन है, जो हैमर लाइक है, उसको हम लोग मैलस कहते हैं। तो पहली वाली हो गई मैलस। मैलस के पीछे जो दूसरी वाली बोल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंकस कहते हैं। सेकंड हो गई इंकस। और इसके पीछे होगी स्टपीज, है ना, ये थर्ड। स्टपीज हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट। क्लियर? तो ये तो हो गया मिडिल ईयर का स्ट्रक्चर, मिडिल वाले पार्ट का। अब मैं जो इनर वाला पार्ट होता है ना, इसको भी थोड़ा सा और डिटेल में दिखाना चाहता हूँ, है ना, इनर वाला पार्ट। तो आप ईयर की एनाटॉमी पूरी ध्यान से समझ लीजिए, है ना। तो ये मिडिल वाला पार्ट,
ये आपने समझ लिया मिडिल वाला पार्ट, और यहाँ पे हम इनर ईयर को डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, इनर वाला जो ईयर का पार्ट है, ये देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये देखिए ये देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये बाहर की तरफ ये वही हो गया, ये मतलब ये बाहर की तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गई। टेम्परेन में ये जो आपके ईयर साइकिल्स होते हैं, एनासाइकिल्स की चेन हो गई, मतलब आइरिस, इंकस और मैलस। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एक कोक्लिया वाला स्ट्रक्चर है, ये पीछे वाले को तो हम कोक्लिया कहते हैं। और यहाँ पर 3 कैनाल है, इसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, इसी तरह ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और लेटरल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं हमारे ईयर के अंदर वाले पार्ट में, है ना। ईयर का जो इंटरनल पार्ट है, इसमें 3 वेस्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं, और यही तीनों वेस्कुलर कैनाल्स के अंदर भी, इनके अंदर भी एक्चुअली लिक्विड भरा हुआ होता है ना। यही हमारी बॉडी, हमारे ईयर के बैलेंस को मेंटेन करके रखती हैं। और ये वाली जो होती हैं, यही क्या करती हैं, इनका काम होता है हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखना, और इन्हीं का काम होता है हमें सुनने में हेल्प करना। ठीक है, क्लियर? स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा, ईयर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा ना सबको? ठीक, अगर क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर इसी बात पे नोट कर लिया जाए। नोट करो, हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। External ear is made up of 3 parts: external, internal and middle ear. External, internal and middle ear. Next, external ear is made up of pinna. अब एक्सटर्नल ईयर किसे किसे मिलकर बना है? एक्सटर्नल ईयर इज मेड अप ऑफ, एक्सटर्नल ईयर इज मेड अप ऑफ पिन्ना, जो हमारा कान बाहर दिखाई देता है, ऑडिटरी मैटस, जिसको कि मैंने बोला कि जो ये कैनाल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली ये ईयर कैनाल दिखाई दे रहे हैं, ऑडिटरी मैटस and tympanic membrane and tympanic membrane. Full stop. Pinna is made up of elastic cartilage and covered with skin. Pinna is made up of elastic cartilage and covered with skin. The most prominent outer part is called helix. ये वाला part, ये वाला. The most prominent outer part is called helix. Next, external auditory matters, that is ear canal. External auditory matters, that is ear canal, is lined by ceruminous gland, lined by ceruminous, जो वैक्स को सिक्रीट करती है, ceruminous gland. That is wax gland. Full stop, अंडरलाइन करेंगे. The latter is, पूछा हुआ क्वेश्चन है, the latter is modification of sweat gland. The latter is modification of sweat gland, which secrete cerumen,
which secrete cerumen, ear wax. Next, tympanic membrane or tympanum, tympanic membrane or tympanum. Separate middle and external ear. Full stop. It is thin, semi-transparent. Full stop. The malus firmly attached to internal part of membrane. Next heading डालेंगे middle ear. The middle ear include, अब यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला पार्ट इसको हम टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। और देखो यहाँ पर, यहाँ से मिडिल वाला जो हमारा ईयर है वो हमारे नाक के पास कनेक्टेड होता है। ये जो लेकर के आती पाइप इसको स्ट्यूकेन ट्यूब कहते हैं। यूस्टेकियन ट्यूब क्या करती है? इट मेंटेन द प्रेशर। तो बाहर से यहाँ पे हवा का प्रेशर और यहाँ से अंदर से हवा का प्रेशर ये मेंटेन करती है, और कुछ एक्स्ट्रा अगर वाइब्रेशन होते हैं तो उनको भी यहाँ से लेकर के आती है। ठीक है, तो मिडिल ईयर में लिखेंगे मिडिल ईयर is made up of tympanic cavity. Middle ear is made up of tympanic cavity. अब ये दो चीजों से मिलकर बनी है ना, tympanic cavity, ये पूरा जो tympanic cavity and ear ossicles. तो ear ossicles किसको बोलेंगे? इन्हीं बोन्स को, ear ossicles. Full stop. Tympanic cavity remains filled with air. Tympanic cavity remains filled with air and connected to Eustachian tube, which maintain the pressure. Underline करो, Eustachian tube का फंक्शन पूछा चुका है। Which maintain the pressure. Next, ear ossicle. There is a small flexible chain. There is a small flexible chain of bones, malus, incus and stapes. Malus, incus and stapes. ठीक है, the function of middle ear is to transmit the sound wave to internal ear. Next, internal ear is a bony cavity. Internal ear is a bony cavity
इंटरनल एयर इज अ बोनी कैविटी, तो बाहर बोन से ही बनी होती है, विच कंटेन a liquid which contain a liquid called perilymph, which contain a liquid called perilymph. Full stop. A structure of membrane, a structure of membrane called a structure of membrane called labyrinth. ये जो स्ट्रक्चर उसी का है, labyrinth. A structure of membrane called labyrinth floats in perilymph. ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं और पीछे वाले पार्ट को कोक्लिया बोलते हैं, है ना। अब एक चीज और रुको जरा, कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर इंटरनल एयर आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली। हाँ 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 हाँ, मैकेनिज्म ऑफ लिसनिंग आई वांट टू टेल यू। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ लिसनिंग का समझने का एक ही तरीका है, इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ लिसनिंग पे मैंने खुद डायग्राम एक बना रखा है, वो मैं आपको
आ जाओ ऊपर। देखो ये, चलो मैं इसको अलग ही रखता हूँ, ऐसे हटाता हूँ। मैकेनिज्म ऑफ लिसनिंग आगे वाले पेज में कर देता हूँ। mechanism listening और हियरिंग, जो भी समझे। देखो देखो ये मैकेनिज्म ऑफ, ये कोक्लिया आपको दिखाई दे रहा है ना, कैसे कैसे काम करता है। यहाँ पर क्या है, आप देखो यहाँ से साउंड वेव गई, साउंड वेव जाने के बाद ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स में गई। अब इसने साउंड वेव ने क्या किया कि यहाँ पर इसको पुश किया, किसको, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई, ज्यादा वाइब्रेशन हुआ तो क्या होता है, वहां से एक्स्ट्रा एयर निकल के, वाइब्रेशन यहाँ से निकल के नाक के थ्रू आ जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक जब साउंड बजती है, बोफिंग वगैरह होती है, तुम्हारे नाक में भी वो वाइब्रेशन से स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या हुआ, ये वाइब्रेशन इससे ये कनेक्टेड माइलस, फ्रिंकस और आइरस, तो ईयर और साइकिल्स होते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। इन्होंने वाइब्रेशन किसको दिया, यहाँ पर देखो ये एक ओवल कलर की ओवल विंडो है ना, तो इसका उसको स्काला वेस्ट्यूबली बोलते हैं। ये जो ट्यूब है ना, कहाँ पे, कोक्लिया में, तो स्काला वेस्ट्यूबली में गया। स्काला वेस्ट्यूबली से देखो ये वाइब्रेशन यहाँ से होता हुआ इस पे किस में गया, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्काला टिम्पैनी बोलते हैं। तो पहले पहुंचा स्काला वेस्ट्यूबली में, फिर स्काला टिम्पैनी में, है ना, और यहाँ से ये घूमकर होता हुआ जो एक्स्ट्रा होता है, ये एक्स्ट्रा फिर से इधर वापस निकल गया, है ना। ये वाली जो बीच वाली है, ये लेयर दिखाई दे रही है, इसको हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कर्टाई, है ना। ऑर्गन ऑफ कर्टाई में क्या होता है, कुछ सेंसरी हेयर पाए जाते हैं। ये जो सेंसरी हेयर होते हैं, ये इन वाइब्रेशन को रिसीव कर लेते हैं और ये इसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो जाकर के हमारे कानों तक पहुंच जाती है, हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है, और वॉइस को सुना जा सकता है। अब इसी बात को मैं जो ये होता है, मैंने एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाने की देखो कोशिश करता हूँ। आपको वो वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम नहीं बनाना, आपको वो वाला डायग्राम बनाना जो मैंने बनाया हुआ है। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप बुक पे पढ़ोगे, बुक पे आपको नहीं समझ में आएगा। बहुत तरीके, बहुत बड़ा है। मैकेनिज्म ऑफ लिसनिंग अगर आपको पूछी जाए तो आपको बस यही डायग्राम बनाना और यही डायग्राम पढ़ना। दिखाई दे रहा है ना सबको ये वाला डायग्राम, विजिबल है? यस। देखो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बस यही ड्रॉ करना है अपने। देखो यहाँ पर क्या होता है, साउंड वेव आई, साउंड वेव ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराई, उसके बाद क्या होता है, ये यूस्टेकियल ट्यूब है, तो एक्स्ट्रा वाइब्रेशन देखो यहाँ से आ गया, है ना। आप देखो साफ साफ यहाँ पे देखो, पहले मैलस पे गया वाइब्रेशन, मैलस से इस पूरे एरिया को हम लोग टिम्पैनिक कैविटी बोलते हैं, मैलस से इंकस में गया, इंकस से स्टिपीज, स्टिपीज इस तरह से फिट होती है किसमें, इस वाले में, इस वाली ये कोक्लिया वाले पार्ट में, इंटरनल ईयर में। अब ये जहां पर फिट होती है इसको हम लोग फेनेस्ट्रा ओवियलिस कहते हैं, ध्यान रखना मेरी बात को, फेनेस्ट्रा ओवियलिस कहते हैं। साउंड वाइब्रेशन अंदर जहां पे जिस ट्यूब में गया, इसको आप कह रहे हैं स्काला वेस्टिबुलाई, स्काला वेस्टिबुलाई में गया। स्काला वेस्टिबुलाई में ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस मेम्ब्रेन है, ये देखो रेजोनर मेम्ब्रेन, रेजोनर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, रेजोनर मेम्ब्रेन के वाइब्रेट करने की वजह से
अंदर एक दूसरा वाला जो ये ट्यूब है उसको स्काला मीडिया कहते हैं। स्काला मीडिया में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में सेंसरी हेयर है, ये सेंसरी हेयर सेंस को रिसीव कर लेते हैं और इसको रिसीव करने के बाद नर्व इंपल्स सीधे चली जाती है कहां पर, ब्रेन की तरफ, है ना। और यहाँ नीचे वाली लेयर को स्काला टिम्पनी कहते हैं और जो एक्स्ट्रा वाइब्रेशन होती है वो इस तरह से पास आउट होकर के उस टिक्यूब ट्यूब के थ्रू निकल जाती है। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ लिस्निंग। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज टेल। क्लियर है भाई सबको? Sir, can you Yes, sir. explain one more time? या श्योर। देखो ना, यहाँ पर क्या होता है, ये साउंड वेव, यहाँ से साउंड वेव आ गई, साउंड वेव, ये दिस साउंड वेव दे कोलाइड विद आवर tympanic membrane, which is a membranous structure. So they convert mechanical wave into vibration. Vibration is then transferred to malleus, then incus, then stapes. Now this is the middle ear. So after that, reaching to the stapes, stapes is fit in the internal ear. In internal ear there is the structure called fenestra ovalis. Fenestra ovalis receive these vibrations. Now these vibrations enter in the tube like structure of cochlea. This tube is called scala vestibuli. In scala vestibuli there is a membrane called resonance membrane. So in a scala vestibuli, this is a tube, inside there is a resonance membrane. Resonance membrane receive these vibrations. These vibrations are from resonance membrane, they are transferred to another tube that is called scala media. Inside scala media there is some hair like structure called organ of Corti. They are a sensory hair. These organ of Corti, they are directly connected with the nerves. They receive these vibration and convert these signals, these vibration into nerve impulse. Now the impulse received by a particular nerve, and these nerve impulses are transferred to the brain, and with the help of our brain we are able to listen. And the extra vibration is passed through scala tympani, and then it goes to the outside of ear through the Eustachian tube. Is it clear? Yes, sir. Now I understood. Thank you. Welcome. So please note it down fast. We are running short with the time. Please note it down fast. The sound wave collected by external ear, full stop, they pass through external auditory matters. They pass through external auditory matters. By means of vibration of tympanic membrane. Full stop. Next point. Vibration are transmitted across middle ear. Vibrations are transmitted across middle ear by malleus, incus, and stapes. By malleus, incus, and stapes. Full stop. The vibration is transferred to internal ear. Vibration is transferred to internal ear. Vibration is transferred to internal ear by stapes. Next point. Perilymph of internal ear. Perilymph of internal ear. Perilymph of internal ear receive vibration
perilymph of internal ear receive vibration through the membrane fenestra ovalis, through the membrane fenestra ovalis. Full stop. Next point. The vibrations are transferred to scala vestibuli, then scala media, through resonance membrane. Full stop. Next point. The sensory hair of organ of Corti, receive vibration. Full stop. These hair convert vibration. These hairs convert vibration into impulses. Full stop. These impulses are sent to brain with the help of nerve. These impulses are sent to brain with the help of nerve. And that's how brain observe the vibrations. Full stop. That's it for the mechanism of listening, and that's it for the chapter of this neural system. Tell me guys, is it clear? Yes, sir. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, एक बार रिवीजन आज के आज ही कर लेना, अदरवाइज भूल जाएगा, क्योंकि आपको हमने दोनों तरह की मैकेनिज्म पढ़ी है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए आप इसको एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है? मैथ्यू, आयशा, हिबा, Yes, sir. clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So see you guys in next class, and we'll Okay, start sir. with the chemical coordination. Bye bye. Alright, Take sir. care. Okay. Yeah. Have a nice day, sir. Yeah, you too. Bye. Thank Good you. night. Welcome. Bye. Good night. Thank you, sir. Welcome, beta. Bye bye. Good night.